glowing from all the motherhood. Thanks so much, Samira, for joining us. I'm glad. I'm happy to be here. Right. We're going for a very busy time, now, Samira. And it's really nice to take time to tell us about how mad it is at home right now. It's completely crazy. I've had to pull my husband out of his work call, which he takes in the den. First of all, the house is segregated. My mom-in-law has got her side. My husband uses part of the den for his business office situation. My Santo free plays around the whole house, and my baby is just about crawling. So it's like a complete madhouse over here. And I'm managing to do this only because she's fast asleep, and I've given my son some chocolate milk, so everyone's just quiet for Wow. now. All right. So, life of a mother. I love every Like video you put out there. Where they are there in your beauty videos, in every video that you put out there. How does it feel to be surrounded by so much love? Does it feel intrusive sometimes? The thing is, I actually found being in the film business very intrusive. And I'll tell you why. Because at that time, I tried to keep up with everybody's expectations. I was very nervous about what people felt about me, whether I could keep up with the South fans, the North fans, whether I was, slim enough, sexy enough, fair enough, whether my white hair would show because I've had white hair since I was 16 years old. And I was honestly under so much pressure that time it was actually harder. And that time it was very intrusive because I let it be intrusive. Today Right. the fun part, this is my son. Oh, hello. Hi. Hello. Thanks so much Hi. for joining us. I He's see you promised he's on promised me to not say a word. He's promised, which is not going to happen. So the whole point is about intrusion is how you allow somebody to intrude into your life. And social media for me is a breath of fresh air because luckily I have people on my accounts who are very like-minded. I do get the oddball sometimes, but most of the time it's really, really lovely people, and I enjoy them. In fact, they keep me sane. Every video of yours, this is something that, my quarantine partner at home and I enjoy. We're both from Tamil Nadu, right? So for me, of course, the Adiye Kolide is something that I love, but I also follow Bollywood. So I've seen a bit of this, bit of that, and then I see your recent videos, and I'm a strong believer of this as well, about hashtag beauty beyond size, beauty beyond perfection. You are perfect. I don't know what anybody, sees as imperfections at all. I think the gray, like Hrithik Roshan recently in a movie said in War, the grays add to so much of light and beauty and happiness. This amount of happiness you put out there every single day, and so many mothers, so many young women, so many middle-aged women, so many women going to their 40s, like your mother-in-law in your videos sometimes, and you did that swap challenge. This is something that's so encouraging. Is this something that you now find as a purpose to put so much of light and love into people's lives, especially in a dark period like this? So, for me, my darkest period was post giving birth the first time, where I went into a postpartum blues, or you call it the depression, like right after you give birth. And at that time, I went through actually a really dark space where I quarantined myself in my house for almost 1.5 years. And I gave and looking back, I can talk about it now, and I can objectively speak to women about it, and I can. So it's more like, it's not like a mission to make people feel good. It's more like saying, be greedy for the good stuff, because we are all stuck in our own issues. In a quarantine situation, you can see it two ways. You can see it either in a way which is, oh my god, this is the worst part of my life, or oh my god, there's so much I can do with this time. I can learn a new language, I can play with my kids. I mean, my husband, I have not spent this much time with him since we got married, because he's a workaholic. And in the beginning he was like, oh my god, and now he's like, wow, this is really nice, and I'm so quiet, and the birds are chirping. So it's the way you see things. And so dark spaces are in our minds, and I always say this. It's the way you choose to see anything in your life. Uh, yes, Hans. Hans is just like going around and around me, going, "Who are you talking to, and why are It's you so doing this?" nice. It's really cute. So You know, that's you that's the whole space. The whole space is, for example, age. I don't understand why it took me so long to understand that aging is not a bad thing. It's not. Actually, it's a good thing, because the more you age, the more you end up knowing what you really want.
It's black and white. It's not gray. So how most people are sort of ashamed about getting older, or ashamed about, not keeping up with certain appearances and all. I say just be like, be full of, the word is, just have the guts, embrace it, and you'll actually have a really good time. Fantastic. Yeah, and that's something that that I see. Every little thing that you put out there on social media is so reflective of today's situation. The happiness that you put out there online. Did you set out on this purpose? Because even your shots when you were pregnant, the shots in the swimming pool, this gives so many women a reason to go into the pool and not be ashamed. Forget pictures. It's just to go out there and, to embrace our bodies. That's something that I think you've really started out not as a trend, but as something that makes us feel happy and about Because yeah, I did it for myself. I'll be very honest. I did it because the first time round when I got pregnant, I'm a big girl. I've been pretty much plump even in my teens. I'm not that skinny girl. And to keep skinny for my career, my God, I used to literally starve myself, run in the mornings, come back from shoot, then be swimming in the nights. It was like I was obsessed and I was constantly dieting. So if you really ask me, like yesterday, I put up a picture from this film called Asal, and I put a throwback. And I have yes, so many people saying, ma'am, when will you become like that? And I keep trying to explain to people, these are different versions. In fact, if I go to that version of me, which was that really slim, sexy one, I did not have even this much confidence. Today, I will flaunt that flab like I really mean it and I will enjoy it. So it really is about your own perception in your head. So what happened is when I got onto social media last year, and I was very late to the game. I mean, the party was on Instagram, Facebook, Snapchat. And I think because I had gone through postpartum depression, I was very quiet and I didn't want to get onto social media because it gave me anxiety, man. I mean, don't you think social media can give you anxiety? absolutely. Every single day, I open my gram and I'm like, there's a model that's out there. Some of them are my friends. But the whole idea is there's constant comparison. So there is pain and There anxiety. is anxiety. So every time I Yes. got onto it, I used to get off it because I just felt like I couldn't breathe. All my colleagues and all were like partying and selfie. The high selfie where everyone looks skinny and everyone's doing the same thing. Tons of makeup. Yeah, you do not wake up in the morning looking like that. You do wake up in the morning with swollen eyes. So I just decided, you know what? I don't want those millions of weird like of followers who are going to want me a certain way. I'm going to come in there and just be. And even if I have one follower who says, you know what, woman, I get you, I'm like, I feel like, oh, you know what, this is worth it. And I'm very proud to say that most of my followers are ladies, are women, are girls. And I'm so proud of that because when you can get a woman to like you, you've done something right. It's very easy for guys to like you, but for a woman to sort of want to be on your account and hear what you're saying, uh, I think that's like for me one big achievement. I think it is because that's the reason we wanted you here, right? 100 hours, 100 stars across the country has celebrities all across. But I was so keen on getting you on board because I know that I have a fraternity of women in my community, and they're different people. I'm an artist, somebody is an engineer, somebody is a doctor, and every time I speak about this, and because you represent movies from Bollywood and from Collywood, so both north and south, there is that feeling of belongingness. Girls who become mothers, girls who are seeing that you cannot just end up looking like Kylie Jenner after a pregnancy. It's very rare that that happens, right? Some And I know do, you but it's talked about okay because there are certain bodies that actually do bounce back, and there yes. are certain bodies that just don't bounce back. But this is where I bring into play that it's not about just post pregnancy. And I will tell you that at times that people have loved me the most. For example, I did this film called Varnam Iram. Yes, I love And it. today I'm telling you that during the making of that film, I remember that I was going through a breakup of my own. It was personal, and I was most miserable through that film while shooting the film because I was feeling so low and I was feeling so down. But it's incredible that, at different parts of your life where people have this perception that, wow, you're doing so well. And there's some other complete story going on. I can tell you so many instances of that, and so many instances in real life also of people going through something and then constantly on social media trying to show
this grandeur, this, oh my God, I got that bag, I got that lipstick. And I keep saying that if you really want the world to make a mindset shift, which I personally do believe it needs desperately, if you really want to connect, like I do believe somewhere, unfortunately, this lockdown, for whatever sad reasons it's come by, it has also come at a time where people just throw things below the carpet. I'll deal with this weight gain, I'll deal with this boyfriend I don't really, I'm maybe not in love with, but I'm just going to go with it because I don't want to hurt his feelings. Or like, or what you really want in life. Or, Right. and I think that this lockdown is an amazing time to just take it by the horns and say, you know what, I'm going to get into this and I'm going to make it black and white. So I always have this thing. I always tell my son, he's 4.5 years old. I mean, I ask him something and he says, I don't know, mama. I'm like, listen, bro, it's black and white. There's no gray. There is no in between. Either you want it or you don't, whether it's chocolate milk or whether it's going to a party. You've got to always know what you want, because if you're clear, then everything's clear around you. Is that something that took time for you to get to? Because I know that's a period of transition in everybody's life. You're instilling this in your son very young, but when do you think that breakthrough for you happened, Samira? Because I know that that joy is now very evident. I see the glow, but I know there would have been a tough time when you realized it. I think it was after I gave birth and I became really huge, okay? Like I had touched like 105 kgs. I was massive. I was massive. My husband couldn't put his arms around my waist. I was that big. And I'm talking, this is 4 years ago. And I remember that time for 1 year, I wouldn't look in the mirror. I wouldn't look in the mirror. I would not be able to. I was still wearing these oversized tights, not looking in the mirror, not being able to connect with what had really happened. And I wasted so much damn time. I mean, for whom and for what? And for society who really, like, does it even really matter? And I think when I finally broke that thing in my head, and I said, you know what, I'm 105, but I'll get to my optimum weight, which is about 75. But till I get there, I'm going to actually try to love myself till then. And that's when I had made this decision of no gray, just no gray. Whether it's somebody offering you a chocolate and you're emotionally eating and you're like, oh, I'll just take it because I need to feel good about myself, or it's black and white. You know what, I really don't need to have that right now. I prefer making a healthier choice, or making any small decision to a big decision. And that purely came after the my first child, wherein and today with my second child, I'm obsessed about holding on to the good. It's very strange how I want to hold on to it, and I implore everybody to do the same. This is 100 Hours, 100 Stars. It's across the Fever Network, Radio 1, Fever, Nasha, and Hindustan Times. So my first big, request from you is to do a shout out to everybody in the country, because we're doing this for a cause. It's for raising funds for the PM Cares Fund, and we'd like anyone who's following you, who's watching this, who's following this entire series, to just click on the link and donate to the PM Cares Fund, whatever little or maximum that they can do for all the warriors out there. So, what's your appeal here? I would request everyone in whatever way, even if it's just a little bit, to please give to the PM funds, because the PM cares and it's somewhere that the funds are really going to go where it matters this time. Let's all just participate in doing something right. Please. Fantastic. Thank you so Yeah? much for. I have another four questions very quickly. Bolo. Very very quickly. Yeah. All right. So this is just a rapid fire that I'm going to do to finish this session. Number one, the pro tip to keep yourself going sexy and going hot and happy, just like you have the glow on, to all the ladies out there, all your biggest fans. All right. So I would say the biggest pro tip to feeling good about yourself is actually really feeling good about yourself. No, not because you're having that bag or that lipper on or because somebody's telling you. Never ever connect it to anything or anybody. If you connect it to yourself, then you're in control of how you feel. And that is your key. That, my friend, if you crack, you're on a roll. Fantastic. Question number two, Barnum Iram, Gautam Menon, Surya. You still remembered for that song that is just so beautiful. Do you know one line of that song in Tamil, by the way? Oh my God, do not make me say anything in Tamil or Telugu right now because I would probably muck it up and they would hate me. So, no, I am not going to go You're down not that road. anything. But then Surya and Gautam Menon, one word about each working with those stars. So, working with Gautam Menon was incredible because, as you know, I was actually the second choice for the film.
The first choice was Janelia, I think. And I remember him coming and telling me very honestly, or I love that our relationship started on honesty. Where he said, Samira, I'm sorry, but you are the second choice of the film. And I hope you're okay with that. And I was like, oh, hell yeah, this is an amazing role. I'm not like, I would love to do it. And I love that about Gotham. His honesty is what made that film the success that it was. And Surya, my lord, there is nobody who's as he's almost like a schoolboy. I always call him a schoolboy on the thing, always on time, doing his work, head down, completely a family man, totally in love with his wife. And I love that about actors when they're so sort of, they're such a good guy. Like he's the good guy. I always say Surya is that ethereal good guy. I really respect it. Absolutely. That is fantastic. Question number 3, and I have just exactly 3 more. 3 kids of yours, one word to describe each of them because they're beautiful. They fill Two our kids. life. I thought you have 3. Okay, that's the No, husband. that's Then. my nephew. It's okay. Oh, that's your nephew. All right. Both your kids, one word about them. Hans is around you, just to describe them. Oh, okay. So Hans is a mastikhor. He is so much fun, and what I love is that he's an ultimate mix between me and my husband. He is unpredictable and full of energy, and I love that about him. What I love about my daughter is she is, as you say, I call her the Gundi. That girl at 8 months old is doing like things I would never expect her to. She's got a temper. She sits on her brother and she literally pulls his hair and she's literally trying to chase him around even before she can walk. So I know that girl's got her own back, and that for me is a big thing, and I'm thrilled about it. 2 more questions. Lots I quickly get there, but Samira, my second last question to you is your shout out to everybody during the kind of negative feelings that we're all locked down. We all know there's a light at the end of the tunnel. What is the light at the end of the tunnel, according to you, for everybody watching this? Well, the only light at the end of this tunnel is the fact that yes, there's going to be a post lockdown, post corona world. And I only would say that my light at the end of the tunnel is the fact that everyone is going to value it so much more. We've efficiently used our resources, whether it's at home or outside. I think everyone has understood what we took for granted. And I know that it will be a better world. And for that, I am somewhere grateful to this. I know it's going to be hard, but definitely we are going to look at things differently and we're going to really value what we have, which maybe was needed in this fast paced world. Absolutely. And last question for all your fans who love you, whether it's Bollywood, whether it's Hollywood, everywhere. We love you, and I love you, and I know that you are standing for, all the women across the world who need a voice, especially when they feel lost, when they feel fat, when they feel ugly. You're the light at the end of our tunnel. So, the shout out to all your fans. Well, I just want to say, first of all, thank you for believing in what I believe in. It's not easy embracing everything. And I can say that the fact that you girls are even willing to listen to me and listen to the fact that I call the situation, that itself is very brave. So thank you for being brave. Thank you for embracing the fact that we all are imperfectly perfect. And at the end of the day, happiness is key. I swear, at the end of the day, if you love yourself and if you really are in the moment and you're enjoying right now, what more do you want? I mean, really, what more do you want? So thank you, and stay safe, stay happy, stay home, and please just stay positive. Thank you very much. Thank you Yeah, so much. thank you, Jane. Thank you. Lots of love. Can I Bye. give a Bye. flying kiss to all your fans? Thanks a lot. Yeah. Thanks so much. Thank you. Bye. Bye-bye. Bye. वेलकम दिस इज 100 आवर्स 100 स्टार्स. मैं रेडियो को बच्चन पीयूष हूँ और इस समय हम बात कर रहे हैं अवेई ओन जावेद अख्तर साहब से. नॉन स्टॉप ट्रिब्यूट टू कोविड वॉरियर्स, वी आर डूइंग इट हियर. और ये आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर एक क्यूआर कोड आ रहा है जहां से आप बिल्कुल जा करके अपना डोनेशन दे सकते हैं. जावेद साहब, जैसे कि रवायत है कि आने वाले मेहमान का सबसे पहले इंट्रोडक्शन दिया जाता है. अब मैं और आपका इंट्रोडक्शन दूंगा, मतलब अपने आप से सवाल है कि मैं दूंगा जावेद साहब के बारे में इंट्रोडक्शन. वाह जी वाह. तो जावेद साहब, मुझे जो पहली चीज आपके बारे में याद आती, बहुत पहले शेर एक पढ़ा था और मुझे लगा था ये किसने लिखा है,
और उस दिन से फिर मुझे पता चला कि आपने लिखा है कि क्यों डरे, जिंदगी में क्या होगा, कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा. So that was my first interaction with an anonymous person who wrote this. And then came जावेद साहब. अच्छा, शुक्रिया. तो जावेद साहब मुझे ये बताएं आप सबसे पहले कि कभी ऐसा हुआ है कि आपको अपना इंट्रोडक्शन देने की किसी को जरूरत पड़ी हो? ये सारी जिंदगी तो यही हुआ है. तो कुछ पिछले बरस है, समझिए बचपन में, स्कूल में, कॉलेज में, जब फिल्म इंडस्ट्री में आए थे तो कम से कम 5-6 साल शुरू तो इंट्रोडक्शन ही देना पड़ता था ना. फिर चलिए कुछ काम वाम ऐसा चल गया कि लोग पहचानने लगे. लेकिन आपको एक अजीब बात बताऊं कि बावजूद इसके कि जब हम लोगों का, मेरा और सलीम साहब का पीक पीरियड भी था और एक साल में ऐसी सुपर हिट फिल्में आई थी, तब भी लोग हमें फेस से नहीं पहचानते थे. अच्छा. तो हम कहीं पब्लिक फंक्शन में जाते थे, किसी जाते, जैसे ही इंट्रोडक्शन होता था तो एकदम लोग वाह वाह करने लगते, अरे अच्छा आप हैं. लेकिन ये फेस से पहचानना लोगों ने आप लोग की मदद से हुआ है. ये जो टीवी जब आई और ये विजुअल वीडियो चैनल आए, तो इससे फिर लोगों ने मुझे फेस से पहचानना शुरू किया. क्या बात है. पर मैं फिर भी मैं आप एक बार अपना ऑफिशियली इंट्रोडक्शन तो कराऊंगा, जो आपने ट्विटर पर अपने लिए लिख रखा है कि मशहूर पोएट हैं, लिरिसिस्ट हैं, स्क्रिप्ट राइटर हैं और डाई हार्ड ऑप्टिमिस्ट हैं. ये जरा मुझे समझाइए, डाई हार्ड ऑप्टिमिज्म के पीछे, मतलब ऑल्दो ये एक्सपेक्ट तो किया जाता है हर व्यक्ति यही करे, लेकिन आपकी क्या सोच है? आप एक क्वालिटी और भूल गए कि एथिस्ट. ओह, बहुत इंपॉर्टेंट बात है. बहुत इंपॉर्टेंट. डाई हार्ड ऑप्टिमिस्ट का मतलब ये है, ऑप्टिमिज्म का मतलब वो है जो आशावादी, जो हिम्मत न हारे और उम्मीद रखे. आप हारते तब हैं जब कोशिश करना बंद कर देते हैं. जब तक आप कोशिश कर रहे हैं, आप हारे कहाँ? जिस दिन आपने कोशिश बंद की उस दिन हार गए. तो हम अगर कोशिश करते ही रहें तो ऐसा मुमकिन नहीं है कि देर सवेर थक जाते हैं असल में हम, या डिमोरलाइज हो जाते हैं. लेकिन अगर लगे ही रहें तो हम अपने गोल को पा सकते हैं. अब हमारा गोल भी रीजनेबल होना चाहिए. कल को मैं तय कर लूं कि मैं जापान का एम्परर बनना चाहता हूं, तो मैं कितनी भी कोशिश करूं तो नहीं हो पाएगा ना, जरा मुश्किल है. लेकिन एक ऐसा काम जो मुझे लगे कि हो सकता है, जहां तक मैं पहुंच सकता हूं और बड़ी ऑब्जेक्टिविटी के साथ, ईमानदारी के साथ मैं महसूस करूं कि टैलेंट मुझ में है, हो सकता है दुनिया नहीं देख पा रही है, तो आप अगर लगे ही रहें और अपने काम को भी बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करें, तो कोई वजह नहीं कि आप कामयाब ना हो. तो ये जो आप लगे ही रहे, मैं शुरू करता हूं 4 अक्टूबर 1964 से लेकर आज के दिन तक आपने तकरीबन 20,291 दिन बिता लिए उस शहर में. मतलब आप कभी ऐसे लाइक व्हेन यू सिटिंग और एकदम सडनली ख्याल आता, अरे इतने दिन हो गए? ये तो आपने बताया मुझे तो पहला रिएक्शन मेरा है कि शहर वाले कितने शरीफ है कि इतने दिनों से मुझे बर्दाश्त कर रहे हैं. तो मैं बड़ा थैंकफुल हूँ. वाकई सच्ची बात ये तो है कि आज जो भी हूँ मैं, वैसे तो खैर क्या हूँ, लेकिन ये इस शहर के बिना तो नहीं हो पाता. तो ये इस शहर का उपकार है मुझ पे. तो फ्रॉम द पोजीशन, वो उन दिनों से जब खाने को कुछ नहीं होता था से लेकर के अपने ड्रीम होम खंडाला में सुकून तक, जी, इस सफर को कैसे देखते हैं? देखिए, दो बातें हैं. जिंदगी कभी कभी मैं सोचता हूं कि रमी के खेल की तरह है. जो लोग रमी खेलते हैं उन्हें आती है, वो समझेंगे बात को. इसमें 3 फैक्टर होते हैं रमी जी. एक, आपको पत्ते बांटे जाए. पत्ते आपकी मर्जी के नहीं होते, क्या पता क्या है, ये आपके हालात है, ये आपके सर्कमस्टेंसेस है. फिर आप उन पत्तों को देखते हैं और ठीक से अरेंज करते हैं. ये इधर लगा लेते हैं, ये इधर लगाते हैं कि शायद यहाँ पर सीक्वेंस बन जाए, यहाँ ट्रायो बन सकती है. तो ये आप अपने हालात को मैनेज कैसे करते हैं, कैसे अरेंज करते हैं, किस चीज को अहमियत देते हैं, किस चीज को अहमियत नहीं देते, ये आप पर. उसके बाद एक दूसरी चीज, अब आपने खेलना शुरू किया. अब आप पत्ता उठाते हैं तो मालूम हुआ डुप्लीकेट आ गया, आप क्या कर लेंगे. या पत्ता उठाया तो जोकर आ गया, या सीक्वेंस का पत्ता आ गया. ये जो है ये फ्लूक्स है, ये विंडफॉल्स हैं. ये कभी अच्छे होंगे, कभी बुरे होंगे. सामने वाला क्या पत्ता फेंक रहा है, आप नजर रख रहे हैं कि ये फेंक चुका है हुकुम की बेगम, तो हुकुम का बादशाह भी फेंक देगा, मुझे हुकुम के बादशाह चाहिए. तो ये आपके अंदर सेंस होना चाहिए कि क्या रखें क्या फेंकें.
अपने हालात, यह आपका खेल है। और तीसरा ये इत्तेफाक है जो आप खींच रहे हैं। पत्ते बदलते रहेंगे, इत्तेफाक बदलते रहेंगे, लेकिन आपके खेलने की सलाहियत जो है और समझ जो है वो परमानेंट है, अच्छी या बुरी। तो अगर आप जीत के इतराने नहीं लगते हैं और जबरदस्ती खेलने लगते हैं और हार के डिमोरलाइज होकर पत्ते नहीं फेंकने लगते हैं और सलीके से खेलते हैं, तो ये तो बदलते रहेंगे। तो आज नहीं तो कल नहीं तो परसों आप जीतेंगे। तो ये जो रमी का खेल है, ये ग्वालियर से लेकर लखनऊ, लखनऊ से अलीगढ़, अलीगढ़ से भोपाल, भोपाल से अब बंबई, ये तो होता है कि जब इंसान थोड़ा समझदार हो जाए तो वो अपना गेम समझ लेता है। अगर इसी की बात करें तो आपका ये बचपन से ही गेम यही था? नहीं, हो ही नहीं सकता है, इसलिए कि बचपन में आप खेल थोड़ी रहे होते हैं, आपके हाथ में ही पत्ते नहीं होते। जब आप एडल्ट हो जाते हैं, बड़े होते हैं, तो जिंदगी पे कंट्रोल आता है। लेकिन ये क्या, अब ये भी देखिए, उनमें सर्कमस्टेंसेस को मैं दाद दूंगा। अगर मैं बचपन में एक राइटर की फैमिली में ना पैदा हुआ होता, ये तो इत्तेफाक है कि मैं वहाँ पैदा हुआ जहाँ चारों तरफ पोइट्री थी, लिटरेचर था, लैंग्वेज थी। तो ये तो कभी कभी मैं सोचता हूँ कि एक जो स्टॉक एक्सचेंज का बिजनेस जिस फैमिली में होता है, उस फैमिली का जो सबसे नालायक लड़का होता है, जो अपनी फैमिली के बिजनेस में इंटरेस्टेड नहीं है, वो 15 साल की उम्र तक स्टॉक एक्सचेंज के बारे में इतना जान जाता है, जो मेरे जैसे लोग जिनका ताल्लुक नहीं है उससे, मेरे ख्याल 6 साल किसी कॉमर्स कॉलेज जाएंगे तो सीखेंगे। इसलिए कि एक प्रोसेस होता है कि जो चीज हवा में है वो आपके अंदर चली जाएगी, भले आप कोशिश करें कि ना करें। उसी तरह से जहां मैं पैदा हुआ वहां चारों तरफ लिटरेचर था, पोइट्री थी, तो वो 12-13 साल की उम्र में तो मुझे सैकड़ों शेर याद थे, और 15 साल की उम्र तक तो मैं आपको 8-9 घंटे तक दूसरों की पोइट्री सुना सकता था, जबकि मैं खुद नहीं लिखता था। अच्छा जी, तो अच्छा। वो तो माहौल से ही हुआ ना। तो अब ये तो मैंने चूज नहीं किया था, ये तो पत्ते अच्छे पड़ गए। मतलब ये आपके ऊपर वो नहीं लगा कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर ही बनना चाहिए, ये वालिद की तरफ से आ रहा है? नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा जो इंजीनियर का बेटा है उससे ज्यादा आसान होता है कंपैरेटिवली, अगर वो चाहे। भी होनी चाहिए, इसलिए कि वो इतनी बातें सुन रहा होता है, इतनी बातें बिना कोशिश के जान जाता है, जो मैं और आप बड़ी कोशिश करें तो जानेंगे। सही बात है। तो जावेद साहब, आपने बताया 15 बरस की उम्र तक आपको ढेरों शेर याद थे और बहुत सारी गजलें और नज्म याद थी। पहला शेर अपना खुद का लिखा याद है? जी याद है, लेकिन वो मैंने किताबों में नहीं छपा है। मेरी जो किताबें 2 छपी, मैं इसलिए चाहता हूँ कि यहाँ पर आप बताएं हमें। वो मैंने रखा नहीं, और बचकाना सा था। यही कमबख्त लम्हा जिंदगी में बार बार आया कि जब खुश भी रहा मैं तो कहाँ मुझको करार आया। क्या बात। ये मेरा जिंदगी का पहला शेर था, मगर ये है वो गजल मैंने रखी नहीं। मैं हमेशा से जानता था कि एज ए स्क्रीन राइटर, एज ए पोएट, जावेद साहब बहुत बड़ी शख्सियत हैं, लेकिन जावेद साहब की शख्सियत के पीछे की जो कहानी है, जब मैं तरकश के आगे पीछे का जो सफा खोल करके पढ़ा, मुझे लगा मैं उस चीज से बड़ा मुतासिर हुआ। इसलिए मैंने सोचा कि कभी ना कभी बिल्कुल तसल्ली बख्श बात करूंगा आपसे। आज वो मौका है मेरे लिए। कुछ लोग, जावेद साहब, बहुत ज्यादा जब इंसान मशहूर हो जाता है तो उससे जबरदस्ती करीबी बनाने की कोशिश करते हैं कि दूसरों को दिखाने के लिए अपने, अरे हम उनके फूफे के नाना के बेटे हैं और ये वो, और हम वहां से, अरे हम भी ग्वालियर से हैं, ऐसा कहते हैं। मैं भी आपसे बोलूंगा अरे मैं भी लखनऊ से हूं, तो मुझे थोड़ा सा तो बहुत सारे लोग जो प्यार के नाम होते हैं, जो निकनेम होते हैं, उनका बहुत इस्तेमाल करते हैं। आपको महफिलों में मैंने कई बार देखा है लोग उस नाम से बुलाते हैं। तो ये जो जबरदस्ती की नजदीकी बनाने की कोशिश होती है, इसके बारे में क्या सोचते हैं आप? देखिए, दोनों ही बातें हैं। कुछ लोग जब आपको जानते हैं तो आपसे थोड़ी मोहब्बत भी करने लगते हैं, तो उसमें ये भी हो सकता है कि उसके पीछे सिंसेरिटी भी हो, और अक्सर होती भी है दोस्तों में। और ये भी हो सकता है कि वो जरा थोड़ा सा शो ऑफ कर रहे हो, लेकिन बहरहाल यही जिंदगी है और यही सब चलता रहता है, और इसको बहुत ज़्यादा इस पर ज़्यादा परेशान होने की मुझे ज़रूरत नहीं लगती। मुझे लगता है कि तरह तरह के रंग बिरंगे लोग हैं दुनिया में, और जिंदगी यूं ही चलती है, कभी कुछ थोड़ा सच है, कहीं कुछ थोड़ा झूठ है, और हम भी वैसे ही हैं। सच बात यह है
कि हम कौन से एंजल, फरिश्ते तो हैं नहीं, देवता तो हैं नहीं, हमने भी कुछ अच्छा है, कुछ बुरा है, और कुछ मतलब का है, कुछ नहीं है। क्या हम नहीं ऐसा करते कि जो आदमी है इम्पोर्टेंट, उससे बेहतर रिलेशन रखे, ज़्यादा ख्याल रखें? ये सब हम सभी करते हैं, सच बात तो ये है। तो उस पर ज़्यादा ख्याल नहीं करना चाहिए। बाकी ये कि जहाँ तक मेरे पेट नेम की बात है, इसकी अपनी एक कहानी आपको सुना देता हूँ। मैं ग्वालियर में पैदा हुआ था, हॉस्पिटल में। जी। तो हमारे बाप तो हार्डकोर कम्युनिस्ट थे, तो वो आए तो उनके कुछ दोस्त जो है वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफिस से आ गए थे, तो भाई सबने बहुत मुबारकबाद दी। तो किसी ने कहा भाई बच्चे का नाम क्या रखोगे? तो एक दोस्त ने कहा कि देखो, जब तुम्हारी शादी हुई थी तो तुमने एक नाम लिखी थी अपनी शादी पे, जिसमें एक लाइन थी, लम्हा लम्हा किसी जादू का फसाना होगा, तो जादू रख दो, यही अब इसी का फसाना होना है। जो शादी के बाद तुम समझ रहे थे, तो जादू मेरा नाम हो गया। फिर किसी ने एक और इंटरेस्टिंग बात बताओ, कहा कि भाई मुस्लिम्स में एक ट्रेडिशन है कि जब बच्चा पैदा होता है तो कान में या तो कलमा पढ़ते हैं या अजान देते हैं, तो कॉमरेड तुम क्या करने वाले? तो मेरे फादर ने उधर से देखा तो एक साहब के हाथ में कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो था, तो उनका भैया ये जरा दे देना, तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लेके मेरे कान में फूका गया। ये मेरा स्टार्ट है। जावेद साहब, जब हम छोटे होते हैं तो अगर हमारे, जब हम स्कूल में क्लास में जाते हैं तो हमारे नाम को लेकर के बड़े हमारे जो करीबी दोस्त होते हैं बहुत मजे लेते हैं। हर किसी का एक पेट नेम होता है और वो उसको तोड़ा मरोड़ा जाता है। आपके साथ कभी हुआ है कि जब आप स्कूल जा रहे थे लखनऊ में? और नहीं, मेरे साथ तो ये भाई जादू मेरा नाम पड़ गया था और काफी अरसे तक जादू ही रहा। फिर लोगों ने कहा भाई बच्चे को केजी वेजी में भेज रहे हो, उधर लोग मजाक उड़ाएंगे, जादू जादू क्या। तो होता यह है कि आपके नाम से मिला जुला आपका पेट नेम हो जाता है। मेरे साथ उल्टा हुआ कि मेरे पेट नेम से मिला जुला मेरा नाम जावेद रखा गया, इसलिए वो जादू से मिलता था। तो ये हुआ। और जहाँ तक स्कूल या कॉलेज की बात है, मेरा कभी किसी ने मजाक नहीं उड़ाया, मैं ही उड़ाता था। अच्छा, अपना खुद का और दूसरों का? ज्यादातर दूसरों का। वो मैंने मतलब मैं जब ये इंटरव्यू करने वाला था तो मैं बहुत संभल करके, मुझे बताया भी गया था कि थोड़ा संभल करके सवाल पूछना, क्योंकि सवाल से ज्यादा दबंग जवाब होते हैं। सो इट्स बेटर दैट यू जस्ट डोंट प्ले ऑन द फ्रंट फुट। जावेद साहब, मेरी लिमिटेड नॉलेज के हिसाब से दो किस्म के राइटर मुझे अभी तक अपने आसपास दिखे हैं। एक वो जो कागज कलम वाले होते हैं और एक वो जो टाइपराइटर वाले होते हैं। मेरे ख्याल से आप समझे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो आप किस किस्म के राइटर हैं? आप कागज कलम वाले हैं, टाइपराइटर वाले हैं? नहीं सर, मैं तो कागज कलम वाला हूँ। जिंदगी भर मैंने डायलॉग कागज कलम पे ही लिखे हैं और पोइट्री भी कागज कलम पे लिखी है, इसलिए कि मुझे ऐसा लगता है कि हालांकि मैं टाइपराइटर तो खैर यूज ही नहीं करता हूँ। कहीं चलिए लैपटॉप कर लिया, उसे भी आप टाइपराइटर ही समझिए एक तरह से। अगर ईमेल भेज रहे हैं तो टाइप ही कर रहे हैं ना, या अपना मोबाइल फोन पे भी टाइप ही करते हैं। तो मैं बातचीत कर सकता हूँ, मैसेज भेज सकता हूँ, मैसेज दे सकता हूँ, लेकिन ये कि जब वो क्रिएटिव काम करना है जिसमें सोचना भी है और लिखना भी है, वो काम मैं जब तक मेरे हाथ में कलम, मुझे ऐसा लगता है मेरे दिमाग से, मेरे बाजू से गुजरता हुआ पेन की निब तक पहुंच के ख्याल कागज पे जाएगा, तो वो कनेक्शन ही नहीं रहेगा अगर मैंने टाइप करना शुरू कर दिया। तो जो चैनल है वो ये है। अभी भी आप उर्दू में लिखते हैं? हाँ, मैं उर्दू में ही लिखता हूँ, और जो डिस्क्रिप्शन होता है, अगर मैं स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ तो डायलॉग उर्दू में लिखता हूँ, और हमेशा से। और जो डिस्क्रिप्शन है सीन का वो इंग्लिश में, ताकि वो दोनों अलग दिखाई दे। फिर उर्दू तो ज़्यादातर लोग पढ़ नहीं पाते, तो फिर होता ये है कि एक हमारे असिस्टेंट हुआ करते थे खलील साहब, वो बेचारे अब रहे नहीं दुनिया में, तो सारी जिंदगी वही मेरा फिर हिंदी स्क्रिप्ट में लिखा करते थे। तो जावेद साहब, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि आप गानों को जिंदगी देते हैं, उनको जिंदगी एक्चुअली शुरू करते हैं। क्या आप गाना गाते भी हैं? क्योंकि अभी हमने शबाना जी का मुश्किल ये है कि लोग सुनते नहीं है। लेकिन बहरहाल आई कैन होल्ड अ ट्यून। अच्छा। हाँ, मैं गा सकता हूँ, ऐसे कोई प्रोफेशनल सिंगर की तरह नहीं, लेकिन एक ट्यून में गा सकता हूँ। और थोड़ा मुझे म्यूजिक का सेंस है गाने से ज़्यादा। तो एक आध बार मेरे म्यूजिक डायरेक्टर थोड़ा शक भी करते हैं कि मैं झूठ बोल रहा हूँ कि मैंने म्यूजिक बिल्कुल नहीं सीखी है। अच्छा। लेकिन मुझे म्यूजिक का
इनबॉर्न सेंस है। वो शायद मेरे बाप की तरफ से है। मेरे दादा तो बाकायदा म्यूजिशियन भी थे, शायर भी थे, सितार भी बजाते थे, नुसरत साहब जी जी। जी। अब जावेद साहब, यू हैव द क्रेडिट ऑफ कि भाई एक चेहरा मिला, एक आवाज मिली राइटर्स को, स्क्रीन राइटर्स को, क्योंकि मैं आप ही का एक इंटरव्यू सुन रहा था, उसमें आप बता रहे थे कि भाई एक जमाना होता था कि जब जा करके कहते थे कि घर का किराया देना है हमें, हमारी ही मेहनत के पैसे हमें ही दे दो और एहसान की तरीके से दो। फिर आप आए, सलीम साहब आए, आप लोग का एक दौर बन गया, आपकी एक पकड़ बन गई। अब वापस से वो हो रहा है कि राइटर्स फिर से गुमनामी में जा रहे हैं। तो ये चीज कैसे अब देखते हैं आप? देखिए, इस मामले में जो हमने अचीव किया था कि जो नाम, पैसा, पोजीशन, मैं उसका ज्यादातर क्रेडिट सलीम साहब को दूंगा। ये जरूर है कि मैं उनके साथ साथ रहा और मैं कभी डर के पीछे नहीं हटा, लेकिन लीड उन्होंने किया। ये हिम्मत जो है ये उन्होंने दिखाई। और ये सच बात है कि जो हमारी प्राइस जहाँ तक पहुंची, हमारा नाम जहाँ तक पहुंचा, जिस तरह से बैनर्स पे नाम आया, ये उसने जो इनिशिएट किया बात वो सलीम साहब। तो इसका क्रेडिट एक्चुअली आप मुझसे बहुत ज्यादा सलीम साहब को दीजिए। चलिए हम सलीम साहब से पहली मुलाकात की बात करते हैं। सरहदी लुटेरा, मेरे ख्याल से आप क्लैप भी दे रहे थे, आप असिस्ट भी कर रहे थे और वो हीरो थे और डायलॉग भी लिख रहा था। और डायलॉग भी लिख रहा था। अच्छा, आप डायलॉग भी लिख रहे थे? वाह। तो पर वो पिक्चर बहुत धड़ाम से गिरी, पर वहां से एक रिश्ता बन गया, वो पहली मुलाकात और वो रिश्ता। भाई वो एक अलग जमाना था। उस जमाने में जो ये फिल्में बनती थी ये रेगुलर थिएटर में नहीं लगती थी। इनके थिएटर भी अलग थे। जैसे ताज हुआ करता था, पता नहीं अब है कि नहीं है, वो ग्रैंड रोड के पास। तो इस तरह की जो स्टंट फिल्में थी, ये मतलब स्टंट फिल्में कहलाती थी। तो ये स्टंट फिल्में इनके 4-5 बंबई में थिएटर थे जहाँ सिर्फ स्टंट फिल्म दिखाई जाती थी। ये रेगुलर फिल्में नहीं थी। ये फिल्म अगर 2 वीक 3 वीक चल जाती थी समझिए कामयाब हो गई। अच्छा। तो ये कोई इसमें के साथ इस पे रिव्यू हो और इस पे डिस्कशन, वो सब नहीं, उससे नीचे, वो रडार से बहुत नीचे थी। तो बहरहाल अच्छा हुआ, वहाँ सलीम साहब उसमें रोमांटिक लीड कर रहे थे, शेख मुख्तार उसके मेन कैरेक्टर थे और एस.एम. सागर साहब एक थे, उन्होंने ये फिल्म बनाई थी। अब देखिए अच्छी बात क्या हुई कि जब हम लोग वहाँ कर रहे थे, अब मैं उसके डायलॉग भी मैं ही लिख रहा था और असिस्ट भी कर रहा था। वहीं सलीम साहब से मुलाकात हुई तो सलीम साहब ने बहुत अप्रिशिएट किया और हमेशा मुझसे कहा कि भाई आप तो ऐसे अच्छा लिखते हैं, आपको राइटर बनना चाहिए। मैं तो वहाँ डायरेक्टर बनने गया था, मगर वो शुरू के वो लोग जिन्होंने मुझे बहुत इनकरेज किया राइटर बनने, उनमें से एक सलीम साहब भी थे कि आप राइटर बनिए, आप इतना अच्छा लिखते हैं, ऐसी फिल्में लिख रहे हैं तो आगे क्या लिख सकते हैं। लेकिन उसी जमाने में उन्होंने एक कहानी भी अपनी सुनाई जो उन्होंने लिखी थी और वो कमाल की कहानी थी। फिर वो कहानी सागर साहब ने ही मिलवाया ब्रिज, जो डायरेक्टर होते थे, ब्रिज सदाना, जिन्होंने अल्टीमेटली विक्टोरिया 203 बनाई थी। तो वो उन्होंने कहानी वहां पर ब्रिज साहब ने सलीम साहब की कहानी खरीदी और उसमें कहानी सलीम साहब का ही क्रेडिट आया। मगर उन लोगों ने, उनके स्क्रिप्ट राइटर और उन्होंने स्टोरी डिपार्टमेंट जो भी था ब्रिज साहब का, उसने उस कहानी को इतना चेंज कर दिया, उसमें इतने नए कैरेक्टर डाल दिए, भाई और ये, कि जो उस कहानी की खूबसूरती थी वो खत्म ही हो गई, तो पिक्चर चल नहीं पाई। लेकिन जिसमें मैं नहीं समझता हूँ कि सलीम साहब की कहानी का कोई दोष था, उसे इसे बिगाड़ इतना दिया गया था। लेकिन ये क्या हुआ, ये कि इसमें पॉजिटिव बात हुई कि हम दोनों की मुलाकात हो गई और हम दोनों में एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट एक दूसरे के काम के लिए हो गई। मैंने उन्हें रिस्पेक्ट किया एज ए कहानीकार, उन्होंने मुझे रिस्पेक्ट किया एज ए डायलॉग राइटर। और फिर वक्त के साथ एक ऐसा वक्त आया कि जब हम एक साथ हो गए। ये बहुत कम लोग जानते हैं और आई थिंक हम लोगों ने भी कभी डिटेल में बात नहीं की, लेकिन आपको बताऊं सच बात ये है कि ये जो इतनी बड़ी बड़ी हिट हैं, इनकी ज्यादातर की, बल्कि मुझे ऐसा लगता है शायद सबकी कहानियां जो हैं वो सलीम साहब की। स्क्रीन प्ले दोनों ने बनाया, डायलॉग मैंने लिखा। तो जहां से हम शुरू हुए थे, एक कहानी और एक डायलॉग, वही हमने जिंदगी भर निभाया। क्या बात है। और फिर आई हाथी मेरे साथी, और उसके बाद फिर देखिए ना, शोले है, दीवार है, त्रिशूल है, डॉन है, ये इनकी कहानियां जो बेसिक कहानियां, ये सब सलीम साहब।
अच्छा, हम दोनों का उस पे आया, वो अलग बात है, तो डायलॉग में भी दोनों का नाम आया, लेकिन ये कि हकीकत ये है कि कहानियां उनकी। ये सुनकर सब मैं वो कहना चाहता हूँ कि मेरे वालिद जो मुझे कहते हैं हमेशा कि जब पेड़ में जिस पेड़ में बहुत फल लगते हैं वो हमेशा थोड़ा झुका होता है। तो ये आपकी बात सुनकर के मुझे बिल्कुल वैसा ही लग रहा है कि इट्स सो नाइस ऑफ यू टू टॉक अबाउट सलीम साहब एंड टू गिव द क्रेडिट ऑफ योर जॉइंट वर्क। मैं कोई क्रेडिट, ये सच है तो सच बोल रहा हूँ मैं, और कुछ नहीं। जज साहब, अब हम बस फटाफट से ये इंटरव्यू खत्म करने से पहले मैं एक छोटी सी, आजकल पॉप कल्चर है, पॉप कल्चर में ये चीजें बड़ी आती हैं बट मुझे लगता है कहीं ना कहीं कनेक्ट करती हैं। नेवर हैव आई एवर, वो आपने आजकल खेल देखा होगा कि मैंने ये कभी नहीं किया है, नेवर हैव आई एवर। तो कुछ सवाल है मैं आपसे पूछूंगा, आप मुझे फटाफट से बताइएगा आपने वो कभी जिंदगी में किया है नहीं किया है, और थोड़ा सा अगर उसके पीछे कोई कहानी हो तो जरूर बताइएगा मुझे। Never have I ever lied about a family member dying as an excuse to get out of doing something. फैमिली मेंबर डाइंग, क्या होता है ना कि हम बहाने देते हैं, अरे वो नानी की तबीयत खराब है, वो दूर की फूफी हैं जो वो गुजर गई इसलिए छुट्टी चाहिए, तो इस तरीके का कोई एक्सक्यूज आपने कभी बनाया है कि टू गेट आउट ऑफ अ सिचुएशन? हाँ बना है जी? हाँ, कि वो हमारे फलां रिश्तेदार की डेथ हो गई, आज मैं इस मीटिंग में आ नहीं पाऊंगा भाई, आई हैव टू रश। हाँ किया। तो ये ज्यादातर बनता रहा है या पहले बनता था? एक आध बार कभी मजबूरी में किया है, लेकिन क्या है ये मैं नहीं कह सकता मैंने कभी नहीं किया। Never have I ever worked with someone I hated a lot, or I didn't like, but yet I worked with the person. No, never. कभी आपने? Never. I walked out at any cost. और मुझे ये भी मालूम था कि इसमें वॉकआउट करने में कितना नुकसान है, मैं कोई बात नहीं। और ये आपने किया है? ये मैं, जो आदमी मुझे पसंद नहीं है मैं नहीं कर सकता था। तो आपको सब इतना पसंद करते हैं कि आपको जाने देते नहीं देते हैं? नहीं, लोग अपने को भी तो बहुत पसंद करते हैं ना, तो बिटवीन देमसेल्व्स एंड मी होती है तो फिर दूसरा पलड़ा ज्यादा भारी होता है। Never have I ever been in an embarrassing video that was uploaded somewhere or shared? Never. Never have I ever had a bad fall because I was walking and texting or walking and talking? No. Never. Never have I ever walked out of a movie because it was bad? No, I have a couple of times. And they were so bad that I can't even remember the titles. बट पिक्चर याद है? नहीं याद, मगर ये मुझे याद है कि मैं उठ के चला गया, वही बहुत हो गया। Never have I ever cried in public because of a song or after watching a movie? I have many times. Oh, I cry very easily. और पिक्चर्स में और नॉवल पढ़ने में, दोनों में, शॉर्ट स्टोरीज में, even sometimes some poems, I get tears in my eyes and sometimes I really cry. Which is that one movie that always makes you emotional? Many. As a matter of fact, मैं आपको एक बात बताऊं कि सबसे ज्यादा जो मुझे याद है वो मूवी नहीं है, बल्कि एक स्क्रीन प्ले जो मैंने पढ़ा था मूवी का। एक किताब मुझे मिली थी, 20 बेस्ट स्क्रीन प्लेज ऑफ 40s। ये जो 1940 का जो डिकेड था उसमें जो 20 बेहतरीन स्क्रीन प्ले हॉलीवुड में बने थे वो उसमें थे, पूरे कंप्लीट स्क्रिप्ट। तो वो मैं पढ़ रहा था एक के बाद, क्या क्या फिल्म है, कमाल की स्क्रिप्ट एक एक। तो उसमें एक स्क्रिप्ट है, उसका नाम था मेक वे फॉर टुमारो। वो स्क्रिप्ट एक बूढ़े हस्बैंड वाइफ के बारे में थी, जिसके ऊपर 2 बार हिंदुस्तान में फिल्में बनाने की कोशिश की गई है। एक तो थी जिंदगी और एक थी बागबान। लेकिन जो ओरिजिनल थी वो इतनी सुपर्ब थी, तो मैं रात को लेट नाइट बेड में लेटा हुआ उसे पढ़ रहा था, और जब वो खत्म हुई तो मैं अपने बेड में बैठ गया एंड देन आई स्टार्टेड हाउलिंग। मतलब नहीं कि मैं चुपके रोने लगा, मैं जैसे किसी की अचानक डेथ हो गई हो तो आप उसकी डेथ पे कैसे रोते हैं, कोई अजीज आदमी को करीब का मर गया, इस तरह से मैंने चिल्ला के रोना शुरू कर दिया। लोग आ गए, क्या हुआ भाई? अब मैं उनसे क्या कहूँ कि मैं एक स्क्रिप्ट पढ़ रहा था, मगर उसने मेरा दिल हिला दिया। और वो कहीं आपको मिले मेक वे फॉर टुमारो, आप वो स्क्रिप्ट पढ़िए। बिल्कुल साहब, बिल्कुल। आपने
आपका सजेस्ट किया हुआ अगर ना पढ़ा तो फिर तो कुछ गड़बड़ है मुझ में, डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। नेवर हैव आई एवर प्रेस्ड सेंड एंड देन इमीडिएटली रिग्रेटेड इट फॉर अ मैसेज। A couple of times and I'll tell you why. जब मैंने भेजने के बाद उसमें देखा तो अरे मैंने ये इसमें यार ये स्पेलिंग गलत हो गई और यहाँ टू आना चाहिए तो टू नहीं लिखा हुआ है, वहां पर आई की जगह यू लिख दिया मैंने। तो इस तरह की जो गलतियां हैं ना, वो मैं अपने आप को बार बार कहता हूँ कि भेजने से पहले 2 बार उसे ठीक से पढ़ो, बिकॉज आई टेंड टू मेक मिस्टेक, आई एम इन अ हरी टू टाइप और उसमें गलतियां होती हैं। तो कई बार ऐसा हुआ कि मुझे अरे तो गलत हो गया तो मैंने उसको डिलीट किया है। तो मगर वो गलती हमेशा टू, इफ, फॉर की वजह से होती है। Never have I ever had a physical fight with my best friend. ऑफ कोर्स यार भाई, स्कूल में कॉलेज में तो नहीं होता था, लेकिन स्कूल में तो बहुत होता। स्कूल में मतलब तो आप मारपीट किस्म करने वाले? भाई स्कूल में बच्चे सभी करते हैं, उसमें कौन सी बात है। अच्छा, मगर नॉट इन द कॉलेज। अच्छा अच्छा। तो अब ये आखिरी एक चीज और है जावेद साहब, कुछ नाम लूंगा मैं, इंसान के नाम है, इंसानों के नाम है, जगहों के नाम है, और मैं चाहूंगा कि आप फटाफट से उसके बारे में आपके जो फर्स्ट थॉट आता है वो हमें बताएं। कैफी आज़मी, बिग पोएट, ग्रेट पर्सनालिटी and a personality with many aspects. He was a poet and much more than that. ग्वालियर, ग्वालियर से मेरी कोई ऐसा वास्ता नहीं रहा। पैदा होने के कुछ महीने बाद मैं वहां से चला गया था, शायद साल भर या 1.5 साल बाद। लेकिन ग्वालियर से मेरा बहुत गहरा रिश्ता है एक दोस्त की वजह से, अपनी पैदाइश की वजह से नहीं, जो ग्वालियर के थे और मैं और वो भोपाल में एक साथ पढ़ते थे। उनका नाम था श्री साहब। वैसे उनका नाम था खुसरो, लेकिन उनका टाइटल था श्री साहब। ये महाराजा सिंधिया के एक ग्वालियर की जागीरदार फैमिली थी जिसके वो बेटे थे, और मैं ग्वालियर उनके साथ गया। और श्री साहब वैसे मेरे क्लास फेलो थे और खुसरो और मुझसे चंद 2-3 साल बड़े थे। अब वो रहे नहीं, कैंसर से उनकी डेथ हो गई। लेकिन मेरे जो इम्प्रेशनेबल एज है उसमें जिन लोगों ने मुझे तरह तरह से इन्फ्लुएंस किया है, उनमें से एक इन्फ्लुएंस जो है वो श्री साहब। शबाना के बारे में तो मैं यही कहता हूँ कि शबाना से मेरी दोस्ती इतनी गहरी और अच्छी है कि शादी भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकी। ये मैंने कई बार शबाना जी के मुंह से भी। देखिए आपको एक बात बताऊं, ये लफ्ज हस्बैंड और वाइफ जो है ना, ये बड़े चक्कर वाले लफ्ज हैं। इन्हें थोड़ी देर हटा दिए इसलिए कि इनकी हिस्ट्री बहुत है। और ये जैसे पत्थर आप रोल करते हैं पहाड़ी से तो काई उस पर लिपटती चली जाती है, ऐसे इनके ऊपर भी वक्त के साथ बहुत काई लिपट गई। तो इन दोनों पत्थरों को अलग रख के सोचें, 2 आदमी एक दूसरे के साथ खुश कैसे रह सकते हैं, चाहे वो दोस्त हों, बाप बेटे हों, भाई हों, 2 बहनें हों, पार्टनर हों, कोई भी हो, ये 2 आदमी एक दूसरे के साथ खुश कैसे रह सकते हैं। ये खुश तभी रह सकते हैं जब वो दोनों एक दूसरे की बराबर की इज्जत करें, ख्याल रखें और ये याद रखें कि इस इंसान को भी आरज़ू का, एम्बिशन का उतना ही हक है जितना आपको। ये भी याद रखें कि ये कितना भी हमसे करीब हो, इसकी अपनी भी एक दुनिया है जिसमें हमें दाखिल होने को हक नहीं है। वो हमें कभी बुला ले अंदर तो अलग बात है, लेकिन उसका अपना कोई सोच है, उसके अपने जहन का कोई हिस्सा है जो उसका अपना है। तो ये 2 बातें अगर हम समझ जाएं कि हम सूरज नहीं हैं और जो दूसरा है वो धरती नहीं है या मार्स नहीं है या नेपच्यून नहीं जो चारों तरफ सूरज के घूम रहा है, हम दोनों अपनी अपनी जगह सूरज हैं। तो मैं समझता हूँ कि हंसी खुशी हम साथ रह सकते हैं। वरना शादियां तो चलती रहती हैं या रिश्ते भी चलते रहते हैं, लेकिन वो एक आदमी की खुशी की कीमत पे चलते हैं। वो इंसान बताता नहीं है कि वो कितना दुखी है या अनहैप्पी है या उसे वो सेटिस्फेक्शन नहीं है इस रिलेशनशिप में जो होना चाहिए, और सिर्फ वो दूसरे के रहमो करम पे आ गया है, वो आइडियल नहीं है। तो ये बात का एहसास क्योंकि हम दोनों को है तो ये रिश्ता ठीक है। अलीगढ़, ओ अलीगढ़, ज़बान, शायरी, सेंस ऑफ ह्यूमर। मैं स्कूल में था, मैं अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में कभी नहीं पढ़ा हूँ। वहाँ पर एक स्कूल है मिंटो सर्कल,
अलीगढ़ में, वहाँ पढ़ता था। लेकिन जाहिर है कि यूनिवर्सिटी के ही एरिया में था तो उसका काफ़ी यूनिवर्सिटी का भी इन्फ्लुएंस था उस पर। और मेरी बहुत खूबसूरत यादें इसलिए कि वो जो 14 साल 15 साल की उम्र में 12 साल की उम्र में आपके दोस्त होते हैं और फिर वो ज़िंदगी भर चलते हैं। तो मेरे तो बहुत पुराने दोस्त वहीं के थे। मतलब मेरा एक दोस्त है जिसका नाम फरहान था और मैंने उस दोस्त की ही वजह से अपने बेटे का नाम फरहान रखा। तो अलीगढ़ से मेरी बहुत खूबसूरत यादें हैं। स्कूल में था और वहीं वो पोट्री वोट्री का माहौल था, तो और मुझे जिला मिली कि जहाँ घर में थी तो फिर जहाँ बाहर आया तो वहाँ भी थी पोइट्री। तो लेकिन जब से वो फरहान मुजीब नाम था, व्हाट अ टैलेंटेड मैन ही वाज, और क्या क्या करता था। उसने पेंटिंग शुरू की तो बहुत बड़ा पेंटर हो गया। मतलब उसकी पेंटिंग बिकने लगी और बड़ी कीमत पे। गाता बहुत अच्छा था, ड्रामा के बारे में मालूम था, म्यूजिक के बारे में मालूम था, फिजिक्स पढ़ाता था, पीएचडी की थी एजुकेशन में, बड़ा कमाल का आदमी था। मगर जब उसकी डेथ हो गई तो मेरा अलीगढ़ से रिश्ता कुछ कमजोर हो गया। उसके बाद अब इतना जाना नहीं होता, वरना उसकी वजह से मैं जाता था, वो अलीगढ़ में रहता था। जोया फरहान। जोया फरहान भाई, सच बात यह है कि आई एम वेरी प्राउड ऑफ देम। और मुझे इस बात की खुशी है कि दोनों कामयाब हैं। लेकिन उससे भी ज्यादा इस बात की खुशी और गर्व है कि ये कामयाब घटिया काम करके नहीं, ये अच्छा काम करके कामयाब। इन्होंने कामयाबी के लिए अपने एस्थेटिक से, अपनी डिसेंसी से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। कि इनकी पिक्चर में आपको घटिया गंदे डायलॉग, घटिया सीन, चीपनेस वो सब नहीं मिलेगा। तो इन्होंने एक सर्टेन स्टैंडर्ड अपना मेंटेन किया है और उससे ये कामयाब हो गए। और अब ये बहुत, अभी तो खैर शुरू हुए हैं, बहुत काम कर रहे हैं और करेंगे, और इस पर बहुत बिजी हैं दोनों। और हालांकि अब ये सब घरों में बंद है तो इनकी मीटिंग्स कॉन्स्टेंटली चलती रहती हैं। और मुझे जोया जो थी हमेशा की तेज तर्रार थी, तो मुझे जोया पे ऐसा लगता था कि ये तो कुछ करके ही मानेगी। इस पे बहुत डर लगता था मुझे फरहान पे, यार ये तो लड़का कुछ झगड़ता भी नहीं है मुझसे, मेरी बात को काटता नहीं है, चुप बैठा रहता है, सीधा साधा है, ये कुछ कर पाएगा। मतलब मुझे जोया जो थी वो हमला करती थी वापस में, तो मुझे उसमें दम लगता था। छोटी सी थी तब से। मेरे दोस्त इसको, जब ये 6 साल 7 साल की थी तो मेरे दोस्त इसको रानी जेठमलानी कहते थे। जेठमलानी बहुत बड़ी लॉयर थी ना, तो हर बात पे आर्ग्यू करती थी और रीजन देती थी, और काफी ठीक रीजनिंग करती थी। तो बड़े हम लोग इंटरेस्ट, यार ये बड़ी ब्राइट है, ये अपना सीधा सा बैठा रहता है, वो बोलता जी हम लोग के साथ। कभी कभी कोई लोग मुझे बताते थे, यार तुम्हारा बेटा डांस बहुत अच्छा करता है। डांस करता है? मैंने तो कभी देखा नहीं। अरे यार तुम्हारा बेटा बहुत फनी है, क्या क्या नकलें करता है वो, बहुत मिमिक अच्छा। मुझे कहाँ है ये? और मुझे इसकी फिक्र रही, मुझे ऐसा लगता था कुछ करेगा। समझो 18-19 साल की उम्र था। आई वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड कि इसका होगा क्या, ये तो निकल जाएगी। मगर इसने कुछ 19-20 साल की उम्र में गियर चेंज किया और फिर ही बिकेम अनदर पर्सन। तो इसने मुझे सरप्राइज दी, आई एम वेरी हैप्पी कि जो सरप्राइज ने दी। और फिर ये कुछ और हो गया। बिल्कुल लेकिन सही कह रहे ये बचपन में बहुत, कम से कम माँ बाप के सामने सीधा रहता और ये पीछे बिल्कुल हटता सही था कहा जब। आपने जावेद साहब, क्योंकि जितनी माइलस्टोन मूवी शोले है उतनी ही बड़ी माइलस्टोन मूवी हिंदी सिनेमा के लिए, बल्कि इंडियन सिनेमा के लिए दिल चाहता है। तो बहुत खूबसूरत बात कही आपने। एक आखिरी शब्द है जिसके मैं चाहूंगा कि आप कमेंट करें, जान निसार अख्तर। भाई अब क्या है कि बाप की तारीफ करो तो लोग कहेंगे कि अपने बाप की तारीफ कर रहे हैं, और ना करो तो कहते हैं अपने बाप की भी तारीफ नहीं करता ये तो ये बड़ा मुश्किल सवाल है। मैं अख्तर साहब से, देखिए मुझे कोई कोठी, कोई हवेली, कोई खेत, कोई फैक्ट्री तो नहीं मिली, लेकिन जो मिला है वो बहुत बड़ा है। मुझे कई बार उनसे घंटों बैठ के बात हुई, लिटरेचर पे, पोइट्री पे, लैंग्वेज पे, और उससे मैंने जो सीखा है वो बहुत बड़ी बात है। मुझे एक उनका जुमला कभी नहीं भूलता है कि देखो, मुश्किल जबान में लिखना बहुत आसान, लेकिन आसान जबान में लिखना बहुत मुश्किल। ये आसान जबान में तुम तभी लिख सकते हो
जब तुम्हें अपने ख्याल पे पूरा यकीन। ये और बड़ी मजे की बात है, कल रात में ये बात कर रहा था अपनी पत्नी से कि क्योंकि आपके इंटरव्यू की बात हो रही थी, तो कि अच्छा क्या पूछोगे क्या नहीं पूछोगे, मैंने कहा कि ये थॉट एक वो शेर की जो मैंने आपको बताया कि आपका पहला शेर मैंने पढ़ा था, और ये ख्याल ये हमेशा मुझसे चिपक के रहा होगा तो तजुर्बा, हाँ कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा, ये वाला ये हमेशा चिपक के रहा है। तो जावेद साहब, मैं अलविदा कहने से पहले आपका वो गाना सुनना चाहूंगा जो भी आपने सूप पीते हुए बनाया था और वो बड़ा मशहूर हो चुका है। आपको उसके लिए शबाना से कांटेक्ट करना पड़ेगा, मुझे तो याद है नहीं, मैंने समझ के कई बार किया हुआ है। हमारे एक दोस्त है सतीश कौशिक जी जी, और मुझसे उम्र में बहुत छोटा है, लेकिन बहुत ही मतलब दोस्त भी कहना क्या समझो, मेरा छोटा भाई है। तो एक दिन वो मेरे पास आए, कहले जावेद साहब मैं अमेरिका जा रहा हूँ और वहाँ पर सभी एक्टर कुछ परफॉर्म करेंगे, कुछ लोग गाना गाएंगे, तो मैं भी जा रहा हूँ, तो मुझे भी तो कुछ करना चाहिए, तो आप मुझे कुछ दीजिए। तो मैंने कहा अच्छा मैं ऐसा करता हूँ कि वो गाना जो है पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में, इसके ऊपर मैं मोटो का एंथम लिख देता हूँ, इसे तो मोटो तो बहुत सुनाना। तो मैंने उस पे उस ट्यून के ऊपर मोटो का एंथम लिख दिया, वो ले गए। अब उनके दोस्त जो थे अनुपम खेर भी जा रहे थे, तो अनुपम खेर ने वो सुना, तो अनुपम खेर ने मुझे फोन किया, कहले जावेद साहब ये तो बिल्कुल गलत बात है, आप एक तरफ है और दूसरी तरफ नहीं, ये कैसे हो सकता है कि आप सतीश के लिए लिखे हो मेरे लिए नहीं, तो आप मेरे लिए लिख ली। तो मैंने कहा आपके लिए क्या लिखूं भाई, मैंने तो उसको मोटा है तो मोटा लिख दिया। कहले नहीं मैं गंजा हूं, मेरे गंजे पे लिखिए ना। भाई ठीक है लिख देता। तो मैंने ऐ मेरे प्यारे वतन ऐ मेरे उजय चमन, उन्होंने ट्यून पे मैंने गंजों का एंथम लिख दिया उनके लिए। तो वो दोनों वहाँ बरसों से गा रहे हैं, अप्रिशिएट होता है और बहुत अप्रिशिएट होता है। और बाकायदा अनुपम जी तो ऑलमोस्ट हर दूसरे इंटरव्यू में ये गाना जरूर गाते हैं। हाँ, पर आज तक उन्होंने क्रेडिट नहीं दिया, आज पता चला कि कहाँ से आया है। अरे कोई बात नहीं, वो क्रेडिट नहीं कहा है। चलिए बहुत शुक्रिया जावेद साहब। थोड़ी लिखा था, वो तो अनुपम के लिए लिखा था। ये बात तो है, लेकिन बहुत शुक्रिया जावेद साहब, आपने इतना वक्त दिया। Noble gesture by you because this is 100 hours, 100 stars. It's a non-stop tribute to COVID warriors. And अगर आप कोई मैसेज देना चाहें हमारे इस माहौल में, इस देश के जितनी भी जनता है उनको, तो बड़ा मजा आएगा। मैं सिर्फ उन्हें एक मैसेज देना चाहूंगा कि दो बातों का ख्याल रखिए। एक तो दुनिया में सब लोग हमारे बराबर खुशकिस्मत नहीं है। हम ये समझे ये हमने सब कुछ कर लिया, ऐसा नहीं, इसमें हालात भी होते हैं और इत्तेफाक भी होते हैं। कुछ लोगों के साथ वो हालात वो इत्तेफाक नहीं हो पाए, तो वो आज तकलीफ की जिंदगी गुजार रहे हैं, उनका ख्याल रखिए और जहाँ तक हो सके रखिए। हम बातें बहुत करते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसी बात सुनने में आती है जो सुन के बहुत तकलीफ होती है। अभी मैंने सुना यही बॉम्बे में कोई फैमिली थी जिन्होंने, जो उनके घर में मेड आती थी काम करने, उससे कहा इतने दिनों तुम आई नहीं तो 1000 रुपए तुम्हारे कम। अब बेचारी को 5000 तो तुम देते थे, उसमें से 1000 रुपए काट लिए। अब ये कोई बात है यार, ये सब ना करो। जहां तक हो सके हम सब जो है कोई टाइकून्स तो नहीं है कि लाखों लोगों की मदद कर सके, लेकिन 5 की तो कर सकते हैं, 3 की तो कर सकते हैं, उतना ही कर दो। एक दूसरे ये याद रखो कि बुरे आदमी को बुरा समझो, वो सही है, लेकिन अगर कोई तुमसे ये कहे कि ये 10 करोड़ आदमी बुरे हैं, वो झूठ है। 10 करोड़ सारे 10 करोड़ आदमी बुरे नहीं हो सकते, 20 करोड़ आदमी। हर जगह पे हर तरह के लोग होते हैं। सांप्रदायिकता से बचो, वो हमारे लिए नुकसानदेह है। वो कोरोना है, कोरोना तो चला जाएगा, ये सांप्रदायिकता ना रह जाए, इस बात का ख्याल। Thank you so much, Javed Saab. Well, this is 100 hours, 100 stars. मैं हूँ रेडियो का बच्चन पीयूष. And please keep donating to the PM Fund. You can see the QR code flashing right in front of you on the screen. Thank you so much, Javed Saab. बहुत शुक्रिया.